Hello and welcome. Welcome to learning session number 8 of chapter number 3, which is life processes in living organisms, part 2. Okay. So far in this learning session, we have seen introduction of this chapter. We have seen asexual reproduction, unicellular, इसमें था binary fission, multiple fission and budding. And then we had seen asexual reproduction in multicellular organisms. इसके अंदर we had seen fragmentation, we had seen regeneration, we had seen vegetative propagation, we have seen another budding, very similar to what we had seen in unicellular organisms, budding, and the last one was spore formation. Okay, so these were the 5 types of asexual reproduction we studied in multicellular organisms. Then we had seen sexual reproduction in plants, and usme sexual reproduction is carried out by flowers in plants, and the important parts were calyx, corolla, androecium and gynoecium, right? And uske andar bhi there was pollination, there was fertilization, there was double fertilization, and lastly there was germination. These four steps constituted sexual reproduction in plants through flowers. Okay, next we have begun and even ended sexual reproduction in human beings. So we had seen male reproductive system, we had seen female reproductive system, and then we had seen gamete formation and fertilization. Okay, so today we are going to talk about menstrual cycle. Okay, so how do you pronounce this? MENS, mens, TRU, true, ALL. Okay, mens, true, al, menstrual cycle. Okay, we're going to only study about menstrual cycle today. Okay, so these are the words we're going to learn today: follicle, stimulate, endometrium. Okay, follicle, stimulate, and endometrium. These are the 3 new words you will learn today. Okay, so quick revision of female reproductive system. क्यों revise करना है? Because the menstrual cycle is related to female reproductive system. Okay, so we are going to quickly revise. This is the ovary. यहाँ पे एक ovary होती है, यहाँ पे एक ovary होती है. Okay, दो sides में ovaries होंगे. Then there is an oviduct which connects the ovary with the uterus. Okay, and every month one ovary is released from the one ovum is released from the ovaries. They come in the oviduct and then come to uterus. Okay, and this is the vagina. And lastly, one thing which is not marked over here is uterus ka inner layer. What is the inner layer of uterus? It's endometrium. Okay, so इसका जो सबसे अंदर का layer होगा, that so uterus is क्या? Uterus is a muscular tube, right? एक ट्यूब की तरह है वो. So उस ट्यूब का जो अंदर का part hoga, that is known as endometrium. Okay, that you all need to remember to understand menstrual cycle very well. Okay, so remember that endometrium is the inner lining of uterus. Okay, so menstrual cycle. Female reproductive system undergoes some changes at puberty. What is puberty? We had seen in the last learning session. It is that age at which changes start happening in human bodies, and the changes are so that the body becomes mature enough for reproduction. Okay, so जैसी puberty शुरू होती है, female reproductive system will undergo some changes, and those changes repeat. Okay, वो changes बार बार होंगे at the interval of every 28 to 30 months. तो every month it's about, the period is about a month, right? 28 to 30 days यानी एक month का period है. So एक month में एक month के बाद वापस वो repeat होने वाला है. So every month this change is going to keep repeating itself. Okay, so ये repeat हो रहा है, right? That's why they call it repetitive changes. So these repetitive changes are called menstrual cycle. Okay, so female reproductive system में puberty से लेके कुछ ना कुछ changes होने वाले हैं हर 28 से 30 दिन में, और उस repetitive changes को, उस cycle को बोलेंगे menstrual cycle. Okay, next, menstrual cycle is a natural process. Okay, and it is controlled by 4 hormones. Natural process है, नहीं अपने आप होता है, कुछ उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, या फिर इट डज नॉट मीन कि तुम लोग कोई बीमारी है. ओके, वो जनरली सबको, एवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपने आप से होने वाला. दैट्स व्हाट दे मीन बाय नेचुरल प्रोसेस. ओके, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय 4 hormones. अगेन, व्हाट आर hormones? Hormones are basically chemicals in human bodies जिन केमिकल्स की वजह से अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट करने वाले अलग अलग ऑर्गन्स. ओके, सो दीज आर बेसिकली केमिकल्स. सो कौन से 4 हॉर्मोन्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल के? फर्स्ट इज follicle stimulating hormone. Okay, so how do you pronounce this? FOL, fall. LI is Li, CLE is Kal, follicle. Follicle
स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, स्टिम्युलेट करना मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट होना या फिर एक्टिव कर देना। ओके, अगर कुछ इनएक्टिव है तो उसको एक्टिव कर देना, उसको बोल सकते हैं स्टिम्युलेट, या फिर डेवलपमेंट को स्टार्ट करना, उसको भी बोल सकते हैं स्टिम्युलेट करना। ओके, सो फॉलिकल स्टिम्युलेट करने वाला है हार्मोन। हार्मोन का मतलब भी हमें पता है, इट्स केमिकल। तो फॉलिकल क्या है? सो बेसिकली फॉलिकल ये एक छोटा सा स्फीयर की तरह होता है जिसके अंदर ओसाइट होता है। यू रिमेंबर ओसाइट? ओसाइट से ओवम फॉर्म होता है, एंड ओवम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। ओके, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल? स्पर्म्स। व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल? ओवम। ओवम किससे बनता है? ओसाइट से। सो फॉलिकल एक छोटू सा स्फीयर है जिसके अंदर लिक्विड्स भरे होंगे, एंड उसके अंदर ओसाइट होगा। ओके, so again what are we studying? Four hormones in menstrual cycle. तो फर्स्ट कौन सा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको FSH भी बोलते हैं। नेक्स्ट, luteinizing hormone. Okay, so how do you pronounce this? LU is lu, TEI is te, NI is nai, and ZING is zing. Okay, luteinizing, luteinizing. Okay, लूटेनाइजिंग हार्मोन, ये सेकंड हार्मोन है। नेक्स्ट, अगेन इसको शॉर्ट फॉर्म में LH बोलते हैं, लूटेनाइजिंग हार्मोन। थर्ड, एस्ट्रोजन। हाउ डू प्रोनाउंस दिस? ES is S, TRO is tro, GEN is gen. Estrogen, estrogen and progesterone. Okay, so PRO is pro, GES is Jess, TER is ter, need ter, and ONE is on. ओके, सो ONE वन होता है। अगर सिर्फ ONE लिखा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन वन होता है, बट इस वर्ड में जब वो ONE ये लेटर्स यूज करते हैं तब उसका प्रोनाउंसिएशन है ऑन, वेरएज जनरली वन बोलते हैं उसको। सो प्रोजेस्टेर ऑन, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लूटेनाइजिंग हार्मोन, ये चार काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, एंड वी गोइंग टू सी इसका क्या फंक्शन है एक एक हार्मोन का इन द नेक्स्ट स्लाइड। Next, last important thing you'll need to know before we actually start discussing menstrual cycle is what are the four parts of menstrual cycle. So कौन से चार parts है? First is period of menstruation. Okay, next is period of generation of endometrium. So endometrium ये word हम लोग ने कहाँ पे देखा है? यहाँ पे, when I was talking about the inner surface of uterus. तो inner surface uterus को क्या बोलते हैं? Endometrium. So यही endometrium यहाँ पे है. So how do you pronounce this? EN is N, DO is do, ME is me, TRI is tri, UM is endometrium. Endometrium. Okay. So period of endometrium is the second part. Third is the ovulation period, and last is the degeneration, I think. Period of secretion of glands in endometrium. तो ये चार parts है of menstrual cycle. Okay, so in the next slide I'm going to show you all a picture of menstrual cycle, और उस picture में पूरा का पूरा process बहुत अच्छे से explain हो जाता है. So all you all have to do is pay attention when I'm explaining the picture, and फिर बाद में तुम लोग को बार बार रीड करके उस पिक्चर में ही सब कुछ याद करना है। ओके, अगर तुम लोग लंबे आंसर की तरह याद करने जाओगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम दैट वन पर्टिकुलर पिक्चर व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन, एंड इट्स अ वेरी ह्यूज पिक्चर। ओके, उसमें बहुत छोटे छोटे चीजें के बारे में ध्यान रखना है। सो वी विल सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो यहाँ पे टॉप पे क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, PIT is pit, UI is U, TARY is tary, pituitary, pituitary. Okay, pituitary gland. So pituitary gland बेसिकली तुम लोग के एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम इज सेट ऑफ दोज ऑर्गन्स इन द बॉडी जिनका काम सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करना है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज वन ऑफ दोज। इसका काम क्या है? सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करना। ओके, सो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? यहाँ पे लिखा है राइट, FSH एंड LH. व्हाट इज FSH? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड व्हाट इज LH? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सो ये दो हार्मोन्स को सिक्रीट करने वाला है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ये हार्मोन्स कहाँ पे सिक्रीट करने वाला है? इट इज गोइंग टू सिक्रीट इट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे इफ यू सी देयर आर फॉलिकल्स। ओके, यहाँ पे क्या है? फॉलिकल्स है। अगेन व्हाट आर फॉलिकल्स? फॉलिकल्स आई टोल्ड यू, फॉलिकल्स बेसिकली छोटे स्फीयर्स होते हैं विच आर फिल्ड विथ लिक्विड्स और फ्लूइड्स, एंड उसके अंदर ही ओसाइट होता है। ओसाइट फिर ओवम बनेगा विच इज योर
फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसके साथ जब स्पर्म यूनाइट हो जाएगा देन यू विल कॉल इट इज फर्टिलाइजेशन, एंड वो फिर बाद में जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, ओके उसमें से न्यू इंडिविजुअल बनेगा। सो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जब फॉलिकल्स पे गिरेगा, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जब फॉलिकल्स पे गिरेगा, स्टिम्युलेट करना यानी डेवलपमेंट स्टार्ट करना या फिर एक्टिवेट करना, एक्टिव बना देना उसको, सो फॉलिकल्स एक्टिव हो जाएंगे किसकी वजह से, एफएसएच की वजह से। सो वंस दे बिकम एक्टिव, वो लोग अभी ग्रो करना शुरू करेंगे, ओके दे विल स्टार्ट डेवलपिंग, सो दीस फॉलिकल्स विल स्टार्ट डेवलपिंग, they will start developing, they will start developing and go on developing. So जैसे ही ये डेवलप हो रहा है, फॉलिकल्स आर डेवलपिंग, डेवलपमेंट के टाइम पे एक और नया हार्मोन सिक्रेट होगा, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, ओके। यहां तक की कहानी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करने वाला है, सिक्रेट करने यानी रिलीज करने वाला है, किस पे रिलीज करने वाला है, फॉलिकल्स पे रिलीज करने वाला है, व्हाट आर फॉलिकल, स्मॉल स्फीयर्स जिसमें फ्लूइड होता है और ओसाइट होता है। सो एफएसएच की वजह से वो अभी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वो जैसे ही डेवलप हो रहा है, डेवलप होते होते वो एक और हार्मोन सिक्रेट करेगा विच इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन। क्यों एस्ट्रोजन क्यों सिक्रेट कर रहे हो, फॉलिकल डेवलप हो रहा है, राइट, फॉलिकल डेवलप हो जाएगा तो उसमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बाहर निकलेगा, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो एस्ट्रोजन की क्या जरूरत है, सो एस्ट्रोजन की क्या जरूरत है, उसका आंसर यहाँ पे नीचे है, ओके। सो इफ यू सी ये जो हाइट है ना, ये हाइट बता रहा है तुम लोग का एंडोमेट्रियम, ओके सो ये तुम लोग का एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम अगेन व्हाट इज एंडोमेट्रियम, तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इनर सरफेस ऑफ यूटरस, ओके यूटरस का अंदर का जो हिस्सा है, अंदर का जो वॉल है उसका हाइट है, तो यहाँ पे इफ यू सी बहुत ज्यादा पतला है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मोटा है, दैट लेयर इज वेरी थिक over your right hand side and it is very thin over here in the left hand side, okay so ये thin क्यों हो गया, that will see at the end, okay ये thin क्यों हुआ है यहाँ पे, that will see at the end, क्योंकि साइकिल रिपीट होने वाला है ना, जो यहाँ पे हुआ है सेम टू सेम वापस यहाँ से शुरू हो जाएगा, so ये साइकिल रिपीट होने वाली है, बट फॉर नाउ जस्ट नो कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है बहुत कम हो गया, सो उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ओके सो एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ाने के लिए एस्ट्रोजन काम आएगा, ओके इसलिए इस पीरियड को क्या बोला है, दिस पीरियड इज कॉल्ड एज रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ओके आई विल वेट फॉर दैट ब्लैक थिंग टू गो अवे। सो यस नीचे क्या लिखा है, पीरियड ऑफ जनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या लिखा है, ये सब डे के नंबर्स लिखे हैं, डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, डे नंबर 4, डे नंबर 5, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये 28 डेज तक लिखा है क्योंकि जनरली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, ओके सो द एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है बहुत कम है, और उसका थिकनेस बढ़ाने के लिए एस्ट्रोजन इज गोइंग टू यूज, दिस पीरियड इज नोन एज पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, वो जनरली 4 और 5 डे से शुरू होता है ये पीरियड एंड इट गोज ऑन टिल 14th डे तक, ये एस्ट्रोजन की वजह से ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ने वाली है, ओके ओके हमारा फॉलिकल कहां तक पहुंचा था, फॉलिकल हमारा डेवलप हो जाता राइट, और डेवलप होते होते एस्ट्रोजन बन रहा था, सो द फॉलिकल इज डेवलपिंग 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 टिल वन मोमेंट, एक टाइम आएगा जब दूसरा हार्मोन सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा, व्हाट इज दिस सेकंड हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ओके एलएच यहाँ पे लिखा है राइट, एलएच, सो जैसे एलएच सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा यानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा, तो ये जो फॉलिकल है इट इज गोइंग टू बर्स्ट, ओके इट इज गोइंग टू बर्स्ट एंड उसमें से ये जो ओसाइट है वो बाहर निकलने वाला है, ओके द ओसाइट इज गोइंग टू गेट रिलीज्ड आउट ऑफ दैट फॉलिकल, ओके सो दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है फॉलिकल बर्स्ट होना और उसमें से एक ओवम बाहर निकलना या फिर ओसाइट बाहर निकलना, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, okay what is it called as, it is called as ovulation and that is going to happen on day number 14, okay this is going to happen generally on day number 14, okay and this period will then be known as period of ovulation, क्यों क्योंकि 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है इसलिए उस पीरियड को बोलेंगे ओव्यूलेशन पीरियड, ओके सो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बाहर निकल गया एंड ये किसकी वजह से बाहर निकला है, ओव्यूलेशन बिकॉज ऑफ LH विच इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल्स काफी हाई होगा हमारी बॉडी में उस वक्त, हमारी बॉडी में एज इन फीमेल्स के बॉडी में, ओके ऑल दिस ओनली हैपनिंग इन फीमेल बॉडीज एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ओके सो नेक्स्ट ये जो बाहर का कवरिंग बच गया है, ओके फॉलिकल टूट गया है और ओवम बाहर निकल गया, तो जो कवरिंग बचा उस कवरिंग का क्या हो रहा है, वो कवरिंग चेंज हो रहा है एक दूसरे चीज में विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस लुटेम, ओके
कॉर्पस लुटेयम। ये किससे बना कॉर्पस लुटेयम? ये जो कवरिंग है उसमें से बाहर निकला है। ओके, दिस कम आउट ऑफ दिस कवरिंग। सो यू कैन सी दिस इज, वो भी येलो येलो कलर का यहाँ पे दिखा। सो कॉर्पस लुटियम से एक और नया हार्मोन बाहर निकलने वाला है, एंड द नेम ऑफ दैट हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। ओके, प्रोजेस्टेरॉन इज गोइंग टू बी रिलीज्ड बिकॉज ऑफ कॉर्पस लुटियम। एंड कॉर्पस लुटियम कहां से आया? ये बेसिकली फॉलिकल का जो कवरिंग है ओव्यूलेशन के बाद, उसमें से कॉर्पस लुटियम बना। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है? यहाँ पे एस्ट्रोजन तो समझ गए, एस्ट्रोजन क्यों था? ये जो एंडोमेट्रियम का थिकनेस है वो बहुत कम हो गया था, उसको इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे तो इंक्रीज हो गया, एंडोमेट्रियम यहाँ पे तो काफी थिक है ना, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन से काम चल रहा था। अभी प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है? तो इसका आंसर है, ये जो ओसाइट बाहर निकला या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो बाहर निकला है, this has to be fertilized. Okay, so the female reproductive system is going to assume करने वाला है कि ये fertilize होने वाला है। okay, हमेशा fertilize होने वाला है क्या? the answer is no. okay, बट वो assume करने वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि ये fertilize होने वाला है। यहाँ पे एक sperm आने वाला है, sperm इससे unite होने के बाद एक zygote फॉर्म होने वाला है। so once the zygote is formed, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, और उस न्यूट्रिशन को देने के लिए कुछ केमिकल्स लगेंगे, और उन केमिकल्स को सिक्रीट करने के लिए ये हार्मोन है। ओके, जैसे प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम पे आ जाएगा, तो एंडोमेट्रियम को पता चल जाएगा कि अच्छा अभी ये फर्टिलाइजेशन का टाइम है, और फर्टिलाइजेशन का टाइम है मतलब एक जाइगोट फॉर्म होने वाला है, और उसको हम लोग को न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, फूड देना पड़ेगा। ओके, तो जो सिक्रीशंस है, केमिकल्स रिलीज करने हैं, वो किस में से रिलीज होंगे? एंडोमेट्रियम में। और एंडोमेट्रियम को कैसे पता चलेगा कि अच्छा अभी रिलीज करना है? वो प्रोजेस्टेरॉन से पता चलेगा। प्रोजेस्टेरॉन कहां से निकल रहा है? कॉर्पस लुटियम से। कॉर्पस लुटियम क्या है? फॉलिकल जो बर्स्ट हुआ था उसका जो कवरिंग है उसमें से कॉर्पस लुटियम बन रहा है। ओके, सो सब कुछ कनेक्टेड है, एंड सच अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, राइट? कि सब कुछ कैसे इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और कैसे सब कुछ एकदम टाइमिंग पे हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, राइट? सो डे नंबर 15, अप्रोक्सीमेटली 15th डे से लेके 28th डे तक प्रोजेस्टेरॉन होगा। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ये जो एंडोक्राइन है इसमें सिक्रीशंस होने वाले, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के अगेन केमिकल सिक्रीट होने वाले, जिससे फर्टिलाइजेशन में हेल्प होने वाली है। ओके, बट अगर समझो ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओके, एवरी मंथ थोड़ी फर्टिलाइज होने वाला है, सो समझो ये फर्टिलाइज नहीं हुआ। सो अगर ये 24 आवर्स में फर्टिलाइज नहीं हुआ, if this is not fertilized in the next 24 hours, जब वो बन जाता है आफ्टर ओव्यूलेशन, तो क्या होने वाला है? कॉर्पस लुटियम इनएक्टिव हो जाएगा। जब वो एक्टिव था तब प्रोजेस्टेरॉन बन रहा था, राइट? जैसे ये इनएक्टिव हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाएगा, एस्ट्रोजन बनना भी बंद हो जाएगा, और ये इनएक्टिव होके कॉर्पस लुटियम कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर 24 आवर्स में ये रिप्रोडक्टिव सेल फर्टिलाइज नहीं हुआ, देन कॉर्पस लुटियम इज गोइंग टू बिकम इनएक्टिव हो जाएगा, और ये कॉर्पस लुटियम फिर कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा। कॉर्पस लुटियम क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि उसमें से प्रोजेस्टेरॉन मिल रहा था और एस्ट्रोजन मिल रहा था। बट क्योंकि अभी कॉर्पस लुटियम इनएक्टिव हो गया, तो प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं बनेगा और एस्ट्रोजन भी नहीं बनेगा। सो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की वजह से थिकनेस बढ़ा था इसका, एंडोमेट्रियम का। सो क्योंकि अभी इसका प्रोडक्शन बंद हो गया है, तो इसकी वजह से उसका थिकनेस वापस कम होने लग जाएगा। ओके, सो इफ यू सी यहाँ पे वापस थिकनेस कम होने लग गई है। ओके, एंड ये जो अनफर्टिलाइज्ड, जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है रिप्रोडक्टिव सेल, और ये कॉर्पस एल्बिकन्स, ये जो दो चीजें है उसको बॉडी के बाहर निकालना पड़ेगा। अभी इसका कुछ काम ही नहीं है, फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तो इसको बॉडी में क्यों रखे? तो इसको बॉडी के बाहर निकालना है हम लोग को। तो बॉडी के बाहर कैसे निकलेगा? ये जो एंडोमेट्रियम का टिश्यू जो निकल रहा है बाहर, उसके साथ ये कॉर्पस एल्बिकन्स भी बाहर निकल जाएगा, और ये अनफर्टिलाइज्ड सेल भी बाहर निकल जाएगा। और ये बाहर निकलते निकलते बहुत ब्लीडिंग होती है। ओके, ब्लीडिंग यानी खून निकलना। सो दिस लॉट ऑफ ब्लड इज गोइंग टू बी रिलीज। ब्लड इज व्हाई इज ब्लड रिलीज? क्योंकि वो पूरा एंडोमेट्रियम का जो लेयर इतना थिक बन गया है, उसको पूरा वापस थिन हो रहा है। वो थिन क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, उसकी वजह से वो थिक बन रहा था। ओके, सो ये सारी चीजें निकलने वाली है थ्रू along with blood. Okay, so if you see, इसलिए मैंने ये पार्ट एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये पार्ट कब पता चलता है? ये जो स्टार्टिंग में और एंड में सेम चीज है। अब ये इसके बाद वापस से ये चीज होगी, वापस से ये चीज होगी, ये 28 डेज का साइकिल चलते रहेगा बार बार। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड थ्रू ब्लीडिंग। ओके, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ओके, बिगिनिंग ऑफ न्यू मेंस्ट्रुएशन।
सो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन. व्हाट इज दैट प्रोसेस? द corpus albicans and the unfertilized reproductive cell and the layers of endometrium are thrown out of the body along with lot of heavy bleeding. This process is known as menstruation. Okay, ये menstruation में बाहर निकलने वाला. And menstruation जैसे ही शुरू होगा, ब्लीडिंग जैसे ही शुरू हो जाएगी, वैसे ही नए फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे वापस अगले साइकिल के लिए. वापस नए फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू होंगे. वो किसकी वजह से डेवलप होना शुरू होंगे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से. वंस दे आर बीइंग डेवलप्ड, एस्ट्रोजन रिलीज होगा. क्योंकि एस्ट्रोजन रिलीज होगा, ये जो ब्लीडिंग हुआ था जिसकी वजह से एंड्रोमेट्रियम का साइज बहुत कम हो गया था, वो वापस अभी इंक्रीज होने लग जाएगा. वो एंड्रोमेट्रियम का साइज इंक्रीज होते होते फिर ओव्यूलेशन का टाइम आ जाएगा. ओव्यूलेशन जनरली विल हैपन ऑन 14th डे. 14th डे पे ओव्यूलेशन होने के बाद वो जो ओवम है या ओसाइट है वो रिलीज हो जाएगा. फिर बाद में वो जो कवर था वो कॉर्पस लुटियम बन जाएगा. फिर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन विल बी रिलीज. प्रोजेस्टेरॉन की वजह से देयर विल बी सिक्रीशंस इन द एंडोक्राइन. वो अज्यूम कर लेगा कि वापस अगले टाइम भी फर्टिलाइजेशन होने वाला है, इसलिए वो सारे केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देगा. बट फिर बाद में अगर 24 आवर्स में वो नहीं हुआ, देन अगेन वो वापस कॉर्पस लुटियम कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा. वो कॉर्पस एल्बिकन्स बनने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा. वापस वो जो एंडोमेट्रियम का लेयर है वो वापस थिन हो जाएगा और ये सब कुछ बाहर फेंक दिया जाएगा थ्रू ब्लीडिंग, एंड दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन. ओके, सो मेंस्ट्रुएशन विल जनरली बी फॉर 4 to 5 days. ओके, 5 days के लिए जनरली होता है वो. और जैसे ही मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा, अगले साइकिल का फॉलिकल्स वापस दे विल स्टार्ट डेवलपिंग. सो दिस एंटायर thing is called as menstrual cycle. Okay, so as I'm telling you all need to by heart this diagram. अगर ये तुम लोग को diagram by heart हो गया, then looking at the diagram it is very easy to explain the entire cycle. Okay, so let us move ahead. These are some important points that I have noted down from menstrual cycle. Okay, I'm not going to read out all of them. मैंने सब कुछ already explain कर दिया है through the diagram. Okay, so I'm not going to repeat all of them, nor am I going to explain any of them. But I am expecting you all to copy it because इसमें से बहुत सारे objective questions आने के chances high है. Okay, so kindly copy these points in your notebook. Okay. Again, if you were not able to see this last point, you all can see this last point now. Okay, I'll wait for 5 seconds, I guess. Okay, I hope you all have copied this entire slide. Next, what's the meaning of menstruation? This is the most important part. Okay, so tissues of degenerating endometrium. Endometrium का जो tissue है वो degenerate हो रहा है, degenerate हो रहा है, destroy हो रहा है, and unfertilized ovum. ये दोनों डिस्कार्ड किए जाते हैं. डिस्कार्ड करना यानी फेंक देना, थ्रोइंग आउट. ओके, थ्रोइंग आउट ऑफ द बॉडी. किस ऑर्गन में से वो बाहर निकल रहा है? थ्रू वजाइना. ओके, वजाइना में से वो ये दो चीजें, डीजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम इज डिस्कार्डेड यानी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू वजाइना. दिस इज अकम्पनीड बाय कंटिन्यूअस ब्लीडिंग. तो 5 दिन के लिए, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम को बाहर फेंक रहा है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम को बाहर फेंक रहा है, कंटिन्यूअसली 5 दिन के लिए ब्लीडिंग होने वाली है. ब्लीडिंग मतलब खून निकलना. ओके, सो ब्लीडिंग होने वाली है कंटिन्यूअसली फॉर 5 days. एंड वो पक्का 5 days नहीं होता, कभी 4 दिन होता है, कभी 5 दिन होता है. इट वेरीज, इट कीप्स चेंजिंग. एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन. ओके, नेक्स्ट, menstruation cycle is a natural process. Again, ये second time बोल रहे हैं लोग natural process है, natural process. Why is this point so important? Because बहुत लोग को ये पता नहीं होता. उनको लगता है कि यार कुछ तो बीमारी है, उनको लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गई है, उन्होंने कुछ गलत खा लिया है या फिर कुछ गलत कर दिया है, या फिर कोई तो बहुत ही भयानक डिजीज हो गया, कैंसर हो गया, कुछ भी लगता है उनको. Because they don't know, right? And that's why I was saying, I think 2 learning sessions, 2 videos back, I had stated in the beginning, it is so important for us to know our entire body. Because फिर बाद में अगर ये सब के बारे में हमारे concepts clear नहीं होंगे, we'll feel खाली फुकट हम लोग worried feel करेंगे. Okay, and to be honest, it's a very sad story, but I want to share it with you all. I recently heard a story where there was this one girl in village, and village may not, that in that village not many people were well educated. Okay, and her parents were working, and she was alone at home, and that's when she was in the age of puberty and menstruation cycle began for her. So this was the first time menstruation was happening in her body. So obviously the bleeding started, खून आने लग गया. खून आने लग गया तो इतनी डर गई वो कि वो किसी और के पास गई जो दूसरा. So it was her teacher. Okay, and the teacher, because
the teacher was also not, the teacher did not have very good relationship with the student. वो स्टूडेंट को टीचर ने भगा दिया, एंड द स्टूडेंट वाज, वो जो लड़की थी वो इतना ज्यादा टेंस हो गई कि यार खून भी आ रहा है, टीचर ने भी डांट दिया, शी कमिटेड सुसाइड। आज की दुनिया में भी ऐसा होता है, इन 21st सेंचुरी, जब अपने हाथ में मोबाइल होता है, इंटरनेट होता है, एंड वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन इन आवर फिंगर टिप्स, बट आज भी क्योंकि हम लोग को अपनी बॉडी के बारे में नहीं पता है, ऐसी चीजें होती है। इट्स शेमफुल, राइट? हमारे देश में आज भी ये सब हो रहा है। That's why science is so important. That's why knowing your body is so important. Okay. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये अपने आप होता है, कुछ गड़बड़ नहीं है बॉडी में, या फिर कुछ गलत नहीं हो रहा है, कोई बीमारी नहीं है, ये अपने आप होता है, ये काफी नॉर्मल है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। एंड विमेन एक्सपीरियंस सिवियर पेन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो जो 5 दिन होते हैं मेंस्ट्रुएशन के, जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है बहुत सारे विमेन को। ओके, सो पेट में जनरली बहुत दर्द होता है उनको, and they cannot concentrate, they cannot do any work studying, they can't study during that time often। and समझ लो उसी दिन पे अगर उनको कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम होगा, फिर तो दे वेरी अनलकी, राइट? क्योंकि उनको इतने पेन में, जब उनको वो लोग अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे, उनको वो एग्जाम देना पड़ता है, जो वो एक एग्जाम पूरे लाइफ डिटरमाइन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम, 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम, लड़कों को ये फर्क नहीं पड़ता, उनको पता भी नहीं चलता। सो बॉयज हैव दिस एडवांटेज कि उनको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। जस्ट इमेजिन ना, हर महीने में 5 दिन लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन होने वाला है, और उसकी वजह से उनको बहुत पेन होने वाला है, दे वोंट बी एबल टू फोकस। लड़कों के प्रॉब्लम नहीं है। सो लड़कों के पास 5 12 डेज एक्स्ट्रा मिलते हैं पढ़ाई के, क्योंकि उनको ये सब प्रॉब्लम्स झेलने नहीं पड़ते। ओके, सो काफी सीवियर पेन होता है, दर्द होता है इस पीरियड में। सीवियर वीकनेस फेल ड्यू टू हेवी ब्लीडिंग, क्योंकि इतना ज्यादा खून बह रहा है, दे फील वीक। ओके, उनमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। देयर इज हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि खून, जब भी खून इन्वॉल्व है, देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं इस पीरियड में। ड्यू टू ऑल सच रीजंस देयर इज नीड फॉर रेस्ट, आराम करना जरूरी है इस टाइम पे, विद स्पेशल पर्सनल हाइजीन। ओके, हाइजीन का मतलब क्या है? साफ सुथरा रहना। सो क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस इतने हाई है इस टाइम पे, टू यू शुड कीप, यू शुड टेक केयर दैट एवरीथिंग इज केप्ट वेरी क्लीन, सो दैट इन्फेक्शन के चांसेस काफी कम हो जाए। ओके, एंड अगेन सी, यहाँ पे बोल रहे हैं, टेक्स्ट बुक में बोल रहे हैं कि रेस्ट करो, बट डू गर्ल्स गेट 5 days ऑफ एवरी मंथ? उनको छुट्टी देते हैं स्कूल से या फिर ट्यूशन से? द आंसर इज नो। टेक्स्ट बुक, और ये महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ही लिखा है कि उनको रेस्ट मिलना चाहिए। ओके, बट स्कूल में रेस्ट मिलता है, उनको नहीं मिलता। वंस दे गो इन टू वर्क प्लेस, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब मिल गई, कोई कलेक्टर बन गई कोई लड़की, अगेन इफ शी इज फीलिंग लॉट ऑफ पेन, इफ शी इज फीलिंग वेरी वीक, उसको छुट्टी मिलती है? नहीं। प्राइवेट प्राइवेट कंपनीज में अगर समझो कोई अकाउंटेंट बन गई, या फिर कोई मार्केटिंग रिसर्चर बन गई वगैरह, कुछ भी हो सकता। अगेन इफ शी इज फीलिंग वेरी बैड, वेरी, शी इज फीलिंग लॉट ऑफ पेन, शी इज फीलिंग लॉट ऑफ वीकनेस बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 5 दिन आउट ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ उसको ये फील हो रहा है, उसको छुट्टी मिलती है? द आंसर इज नो। अगर उसने छुट्टी लिया तो उसका जो सैलरी है वो कट कर देते हैं। ओके, एंड इसके लिए लड़कियों को प्रमोशंस भी नहीं देते हैं कि हाँ तुम लोग तो छुट्टियां लेते रहोगे, ये वो, उनको घर का काम तो एक्स्ट्रा होता ही है। क्योंकि सी, इफ यू, नाउ द पैंडेमिक इज गोइंग ऑन, जस्ट थिंक, तुम्हारे घर में वो जो वॉशिंग डिशेज होता है, जमीन पोछना होता है, कपड़े धोना होता है, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्क्स आर बीइंग डन बाय मेन एंड हाउ मेनी ऑफ दिस वर्क इज डन बाय विमेन? सो ऑलरेडी उनको घर का काम एक्स्ट्रा देते हैं जस्ट बिकॉज दे आर विमेन, ऊपर से ये सब प्रॉब्लम्स भी है। So it's a very big problem in our society right now, and we need to do many things so that they feel a little better। और ये जो men और women का equality का सवाल है, it's not equal right now, and one of the reasons, not this is not the only reason, okay, one of the reasons is menstruation। okay, and again it's an opinion, ऐसा होना ही चाहिए, किसने बोला है? I think होना चाहिए, because they have this disadvantage, उसको equal करने के लिए I think something should be done। some people might feel no, कि तुम लोग को advantage है, you always just unlucky, अब तुम लोग देख लो। okay, so there are many different opinions and it's a very good topic for discussion। okay, that's it for this learning session। the new words we learned today were follicle, a fuel filled sac that contains an oocyte। okay, next, stimulate any to start developing or getting active hona। endometrium is the innermost layer of uterus। okay, so that's it for this learning session। I hope you all understood the entire learning session। बस वो अच्छे से डायग्राम अच्छे से बाय हार्ट कर लो और समझ लो, you'll understand the menstrual cycle very well। again
after doing that, do read that portion from the textbook for better clarity. Okay, and I think you all should be able to understand this entire menstrual cycle very well. Okay, and also think about the सोशल क्वेश्चंस आई आस्क्ड इन बिटवीन, लड़कियों को एक्स्ट्रा छुट्टियां मिलनी चाहिए क्या, पेड लीव्स मिलने चाहिए क्या, अगर उस एग्जाम के दिन पे अगर समवन इज इन गोइंग अंडर मेंस्ट्रुएशन फिर क्या कर सकते हैं उसके बारे में, डू यू थिंक बस लक पे छोड़ देना चाहिए, ओके तुम यू वर जस्ट अनलकी, तो उसके बारे में हम लोग कुछ कर सकते हैं एज अ सोसाइटी, जस्ट थिंक अबाउट दोस क्वेश्चंस, ओके दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के बारे में सोचने के लिए ही हम लोग साइंस पढ़ते हैं, या फिर अगर इनके बारे में नहीं सोचना तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ के तुम लोग ने क्या किया, ये लाइफ में क्यों यूज करने वाला है, इसीलिए हम लोग ने पढ़ा है ताकि इन सोशल प्रॉब्लम्स को हम लोग अच्छे से समझ के अच्छे से डिस्कस आर्ग्यू कर पाए और चेंजेस लेके आए. ओके, so that's it for this learning session and I hope to see you all in the next learning session. Till then, see you guys, bye.